When you compare yourself with people in many other countries in previous centuries, you are much more blessed than them. जब आप अपनी तुलना दूसरे देशों के मसीहों से करो या पिछले शताब्दियों के मसीहों से करो, तो आपकी परिस्थिति उनसे कई अधिक बेहतर है। In the olden days, there was no YouTube, there was no video. Nobody could sit at home and listen to a message. पुराने दिनों में कोई YouTube नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई भी घर बैठकर इन सारे संदेशों को सुन नहीं पाता था। But today you have that privilege. Thank God for that. पर आज आपके पास ये सौभाग्य है, परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद दें। Not only on Sunday, you can listen every day if you want to a message from the Word of God. और इसलिए केवल इतवार के दिन, रविवार के दिन नहीं, आप चाहो तो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से को सुन सकते हो। We have a full Hindi channel on YouTube with many Hindi messages. और YouTube पर हमारा एक हिंदी चैनल है जिस पर कई हिंदी संदेश है। And you can keep on listening every day. और आप प्रतिदिन सुन सकते हो। So thank God for that. और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। You got a small child, you're not able to do much like others. और आपके पास छोटा बच्चा है, इसलिए शायद आप दूसरों की तरह बहुत कुछ कर नहीं सकते। I want to tell you that Jesus can be with you in your house. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके साथ आपके घर में हो सकता है। And wherever you move in your house, Jesus will be with you. और आप अपने घर में जहां कहीं जाओ, यीशु आपके साथ होगा। You pray, Lord Jesus, fill me with the Holy Spirit and give me an assurance you fill me with the Holy Spirit. आप प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और मुझे एक आश्वासन दे कि तूने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है। And the most important thing then is to believe. और फिर बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि आप विश्वास करें। Lord, I believe you love me. प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हो। I believe you will answer my prayer. मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे प्रार्थना का उत्तर दोगे। And whatever your limitation is, God understands it. और आपकी सीमाएं कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर वो समझता है। And through you, God will bless your whole family also. और आपके द्वारा परमेश्वर आपके पूरे परिवार को भी आशीष देगा। So never feel sorry for yourself. और इसलिए कभी भी खुद पर तरस न खाएं। Never feel discouraged. कभी निराश न हो। Why should you feel discouraged if Jesus is with you in the house? अगर यीशु मसीह आपके साथ घर में है तो आपको क्यों निराश होने की जरूरत है? Keep remembering, Christ is here with me. I'm not और going to इसलिए be. ये याद रखिए कि यीशु मसीह मेरे साथ है, मुझे निराश होने की जरूरत नहीं। You pray, Lord, if it is your will, bring me in touch with at least one other Hindi-speaking sister who is serious and wholehearted. आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो ऐसी एक और बहन के संपर्क में मुझे लाइए, हिंदी बात करने वाले जो पूर्ण हृदयी हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Just like there is good and bad in the world, there's good and bad in the internet also. जैसे संसार में अच्छा और बुरा है, वैसे ही इंटरनेट पर भी अच्छाई और बुराई है। Just like when you go to the market and you buy fish or fruit or anything, you look for what is good. और जैसे जब कभी आप मार्केट में जाओ और आप फल खरीदो, मछली खरीदो, तो आप हमेशा वो देखते हो जो अच्छा है। Everything is not equally good. सब बातें समान तौर पर अच्छी नहीं होती। You go to different shops and you find some shops they are selling cheap, bad stuff. आप अलग अलग दुकानों में जाओ, कुछ दुकानों में आप पाओगे कि वे बहुत ही सस्ती बातें बेचती है। Some people charge a lot of money, but the food is bad. कुछ लोग बहुत पैसा भी मांगते हैं, पर भोजन बहुत बुरा होता है। But then there are other places you find, oh, I go to this shop, I find they always have very good meat and vegetables there. पर दूसरी जगह आप जाते हो, आप देखते हो कि वहां बहुत ही अच्छा मांस मिलता है, बहुत ही अच्छे सब्जियां मिलती हैं। I remember when I used to go shopping in Bangalore, after some time I would find certain shops, I'd go only there to buy my food. और मुझे याद है जब मैं बैंगलोर में खरीदने जाता था बाजार में, तो मैंने कुछ दुकान ऐसे ढूंढ लिए थे जहां कुछ समय बाद मैं केवल उन्हीं दुकानों में जाता था खाना खरीदने। I tried many shops and I found this is the best. क्योंकि मैंने कई अलग अलग दुकानें खोजी और ये सबसे बेहतर निकली। So then I only go there. और फिर मैं बस वही जाता हूँ। Don't waste my time with other shops. मैं समय ही नहीं बिताता दूसरे दुकानों में। If you have found something which is blessing you, stay with that. Don't go searching in other messages. और इसलिए अगर आपने ऐसा कुछ पाया है जिससे आप आशीष पा रहे हो, तो वहीं रुक जाइए, किसी और संदेश को ना खोजने की कोशिश करें। There are hundreds of studies that you can get on the internet. ऐसे 100 अध्ययन है जो आपको इंटरनेट पर मिलेंगे। But they'll only go to your head and give you knowledge. पर वे केवल आपके दिमाग में जाकर आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, Not life. जीवन नहीं। We have a great lust for knowledge, all human beings. हम सब जो मनुष्य होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी लालसा होती है।
In the Garden of Eden, God put a tree of knowledge and a tree of life. अदन के बगीचे में परमेश्वर ने एक जीवन का वृक्ष रखा और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष रखा। And even though Adam and Eve had not sinned, और यद्यपि आदम हवा ने पाप नहीं किया था, what did they go for? वे कहाँ गए? Did they go for knowledge or for life? क्या वो ज्ञान देखने गए या जीवन के पास गए? If they had gone for life, the story would have been different. अगर वे जीवन के फल के पास जाते तो कहानी अलग होती। They went for knowledge. वे ज्ञान के लिए गए, Knowledge without life. ज्ञान बिना जीवन के। And what did they get? और उन्हें क्या मिला? Spiritual death and the devil. आत्मिक मृत्यु और शैतान। So in the internet also there are these two trees. और इंटरनेट पर भी ये दो प्रकार के पेड़ हैं, Knowledge and life. ज्ञान और जीवन। And it is your choice which one you choose. और ये आपकी चुनाव है कि आप क्या चुनते हो। I have listened to so many messages on the internet मैंने इंटरनेट पर कई अलग अलग संदेश सुने हैं, just to find out what people are preaching. ये खोजने के लिए कि लोग क्या प्रचार कर रहे हैं। I tell you, more than 95% is knowledge. मैं आपको बताना चाहता हूँ 95% से ज्यादा केवल ज्ञान ही है। Go for those messages that will change your life, उन संदेशों के पास जाए जो आपका जीवन बदल देते हैं, that will help you to overcome sin in your life. जो आपके जीवन में पाप पर विजय पाने की सहायता करते हैं। Your biggest problem is not lack of knowledge, but sin. आपकी सबसे बड़ी समस्या ज्ञान की कमी नहीं है बल्कि पाप है। So stick to those messages on the internet that help you to overcome sin. और इसलिए उन संदेशों तक ही सीमित रखें अपने आप को इंटरनेट पर जो आपको पाप पर विजय पाने में सहायता करते हैं। Pray that God will bring you into fellowship in your locality with at least some others who have the same desire. और आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपके ही जगह आपको किसी और के संगति में लाए जिनके अंदर यही इच्छा है। I would rather fellowship with one brother who is serious about overcoming sin than go to a church with 1,000 people who just listen to messages. मैं यही चाहूंगा कि मैं एक भाई के साथ संगति करूं जो पाप पर विजय पाने में दिलचस्पी रखता है, इसके बजाय कि मैं एक ऐसे कलीसिया में जाऊं जहां 1000 लोग हैं जो केवल संदेश सुनने आते हैं। So keep that in mind. और इसलिए इसे ध्यान में रखें। God will guide you. परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। Yeah, I believe you are sincere in your questions. मैं विश्वास करता हूं कि आपके इस प्रश्नों में आप ईमानदार हो। I will answer them. मैं उनका उत्तर दूंगा। When we started CFC 47 years ago, जब 47 वर्षों पहले हमने CFC की शुरुआत की, we were about 3 or 4 people. हम 3 या 4 ही लोग थे। That's all. Meeting in my house. बस उतने ही, मेरे ही घर में हम मिलते थे। And today we are about 150 churches in 14 countries. और आज लगभग हम 150 कलीसियाएं हैं 14 अलग अलग देशों में। We have churches in 2 villages in India where 2000 years there was no church. और भारत के ऐसे 2 गांवों में हमारी कलीसियाएं हैं जहां 2000 वर्ष तक एक भी कलीसिया नहीं थी। Did that happen without doing evangelism? क्या ये किसी भी सुसमाचार कार्य के बिना हुआ है? The only thing we don't boast about it. एक ही बात है कि हम उन पर घमंड नहीं करते। If you go to the CFC website, there is no list of churches there. अगर आप CFC वेबसाइट पर जाओ तो आपको कोई सूची नहीं मिलेगी कि CFC कलीसियाएं कहाँ है। The groups will make a big list of all their churches. दूसरे जो लोग हैं वो एक बड़ी बात बना देंगे कि हमारी इतनी कलीसियाएं हैं। You go to CFC Bangalore website, you think there's only one church. अगर आप CFC बैंगलोर की वेबसाइट पर जाओ तो आपको लगेगा एक ही कलीसिया है केवल। Because we are not interested in numbers. क्योंकि हम संख्या में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते। So Jesus said, keep your work hidden. यीशु ने कहा अपने काम को छिपा हुआ रखे। So we have tried to keep our work hidden. और इसलिए हमने कोशिश की हमारे काम को छिपा हुआ रखने की। Because we don't want the approval of men. क्योंकि हम मनुष्यों से की स्वीकृति नहीं चाहते। And we have many thousands of believers in our churches. और हमारे पास कई हजारों विश्वासी हमारे कलीसियाओं में। And at least 2,000 or 3,000 of them are from non-Christian background. और लगभग 2 से 3 हजार लोग हैं जो गैर विश्वासी गैर मसीही परिवारों से हैं। Did we practice evangelism or not? क्या हमने सुसमाचार प्रचार किया या नहीं की? The other thing I want to say is, और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, I don't believe CFC is the whole body of Christ. मेरा ये विश्वास नहीं है कि CFC इकलौती या पूर्ण मसीह की देह है। We are one very important part of the body of Christ. हम मसीह की देह का एक महत्वपूर्ण अंग है। For example, there are hands, eyes, many other parts of the body.
उदाहरण के तौर पर आंखें हैं, हाथ है, शरीर के कई अलग अवयव है, And inside there are many more other parts also. और शरीर के अंदर भी कई मुख्य अवयव है। So, for example, there are two organs inside our body at the back called kidneys. उदाहरण Inside. के उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर के अंदर दो ऐसे मुख्य अवयव हैं जिनका नाम है किडनीज। You know what they do? क्या आप जानते हो वो क्या करते हैं? They're always purifying, 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 purifying. वे निरंतर शुद्धिकरण करते रहते, शुद्ध करते रहते, शुद्ध करते रहते, That is their only job. और ये उनका इकलौता काम है। But if your kidneys die, you die. पर अगर आपकी किडनीज मर जाते हैं तो आपकी भी मृत्यु होगी। Sometimes the Lord has some churches which are like kidneys. Keep on emphasizing purifying. और इसलिए प्रभु के पास भी कभी कभी ऐसी कलीसियाएं होती है जो किडनीज की तरह है, जो हमेशा शुद्ध होने के बारे में, पवित्र होने के बारे में प्रचार करती है। No church can do the full body of Christ's job. कोई भी कलीसिया मसीह के देह का पूरा काम नहीं कर सकती। If we are humble enough to admit that. अगर हम नम्र हो इसको मान लेने में तो। Because some people who work among very poor people, feeding them, clothing them, and giving them medical help. ऐसे कुछ लोग हैं जो बेहद ही गरीब लोगों में काम करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उन्हें वस्त्र देते हैं और उनको मेडिकल सहायता देते हैं। In the name of Jesus and leading them to Christ. यीशु मसीह के नाम से, और उन्हें मसीह के पास लाते हैं। They are also doing a work. We are not doing that. वो भी एक काम कर रहे हैं, हम वो काम नहीं कर रहे हैं। They are also part of the body of Christ. वो भी मसीह के देह का हिस्सा है। I have to do my part. मुझे मेरा काम करना है। CFC has to do its own part, not the work of the whole body. We are only a small part of the body. सीएफसी को अपना खुद का काम करना है, पूरे शरीर का काम नहीं, हम शरीर का एक छोटा हिस्सा है। Bible says God has appointed some as teachers, some as evangelists. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ को प्राचीन और कुछ को सुसमाचार देने वाले नियुक्त किया है। Like there are doctors and engineers. जैसे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं। Engineer builds a building, doctor repairs a man's body. इंजीनियर बिल्डिंग बनाते हैं और एक डॉक्टर किसी शरीर की मरम्मत करते हैं। Like going to an engineer and saying, "Why aren't you healing this man?" ये फिर बिल्कुल ऐसा हो गया कि आप इंजीनियर के पास जाकर कहो कि आप इसको क्यों नहीं चंगा करते। No, he says, "I'm building a house and repairing the house for this man." नहीं, वो कहेगा कि इसी व्यक्ति का मैं घर बना रहा हूँ, घर की मरम्मत कर रहा हूँ। My fellow worker, the doctor, takes care of his body. मेरा दूसरा सहकर्मी डॉक्टर है, वो शरीर संभालेगा। Like that, we understand there are teachers in the world, doctors, engineers, they are all are needed. वैसे ही हम समझते हैं संसार में शिक्षक है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, उन सब की आवश्यकता है। We don't seem to recognize in the body of Christ it's like that. Each person has got a different ministry. पर हम यही नहीं पहचानते कि मसीह की देह बिल्कुल ऐसे ही है, हर एक व्यक्ति की अलग-अलग सेवकाई है। And we don't boast that we are doing everything. No church is doing everything. और हम ये घमंड भी नहीं करते कि हम सब कुछ कर रहे हैं, कोई भी कलीसिया सब कुछ नहीं कर रही। But we must be clear what God called us to do, and we do it. हमें बिल्कुल साफ होना चाहिए कि प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है और हमें वही करना चाहिए। And we rejoice with others who are doing something else. और हम दूसरों के साथ आनंद मनाते हैं जो दूसरा कुछ कर रहे हैं। Why do they complain about us? We don't complain about them. वो हमारे विषय में क्यों शिकायत करते हैं, हम उनके विषय में शिकायत नहीं करते। We say, please accept those who have another emphasis. हम कहते हैं कृपया उन्हें स्वीकार करें जिनको जो किसी और विषय पर जोर देते हैं। There are certain things that must be true for every part of the body. अब कुछ बातें हैं जो शरीर के हर एक अंग के लिए एक जैसे होनी चाहिए। No church must go after money. कोई भी कलीसिया पैसे के पीछे नहीं दौड़नी चाहिए। No pastor must preach for money. कोई भी प्रचारक पासवान पैसे के लिए प्रचार नहीं करना चाहिए। Every church we must preach humility. हर एक कलीसिया में हमें नम्रता का प्रचार करना चाहिए And holiness. और पवित्रता का, Along with all the other ministries. उसी के साथ दूसरी सेवकाइयों का भी। That is the answer. और वही उत्तर है। Yeah, we are encouraged to hear that you are being blessed by the word. और हम प्रोत्साहित होते हैं ये सुनकर कि आप वचन सुनकर आशीषित हुए। Please continue in that. उसी में जारी रहे And continue reading the books and listening to the messages. और किताबों को पढ़ते रहे और संदेशों को सुनते रहे। Because all of us got a long way to grow to become like Jesus Christ. क्योंकि हम सबको एक लंबा सफर तय करना है अगर हम यीशु मसीह के जैसे बनना चाहे तो। Even at my age, I'm trying to become more like Christ. सोचकर देखिए, मेरी उम्र में मैं अब भी कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा मसीह जैसे बनूं। The main thing we emphasize, and that's what you need. और ये मुख्य बात है जिस पर हम जोर देते हैं और आपको भी इसी की जरूरत है। Seek to become like Christ in your personal life. आपके व्यक्तिगत जीवन में आप मसीह जैसे बनने की कोशिश करें। More and more. अधिक और अधिक। Seek for fellowship also, that God will give you some good fellowship. आप संगति को भी खोजें कि परमेश्वर आपको कुछ अच्छी संगति दे।
So we are very happy that you have read so many books and listened to messages. हम बहुत खुश है कि आपने कई किताबें पढ़ी है और संदेशों को सुना है। See, Jesus said that he will build his church. यीशु ने कहा कि वो अपने कलीसिया का निर्माण करेगा। I've learned one thing in 60 years. 60 वर्षों में एक चीज मैं सीखा हूँ, Zach Punan cannot build even one church. जैक पुनन एक भी कलीसिया को नहीं बना सकता। If I build a church, it will be destroyed. अगर मैं कलीसिया का निर्माण करूं, उसका नाश हो जाएगा। Jesus will build his church, and I'm one of his workers helping to carry a brick or put some cement like that. यीशु मसीह अपने कलीसिया का निर्माण करेगा और मैं केवल एक सहकर्मी हूं जो शायद एक ईंट उठाता है, थोड़ा सीमेंट भर देता है। And you can also be a servant like that. और आप भी ऐसे ही सहकर्मी हो सकते हो। None of us are the builders. Jesus is the main architect, contractor, builder. हम में से कोई अकेला बिल्डर नहीं है, यीशु मसीह ही मुख्य आर्किटेक्ट है, बिल्डर है और कॉन्ट्रैक्टर भी है। We are like the laborers who are cooperating in building the house. हम वहां के काम करने वाले हैं जो लेबरर्स के समान है, जो उस घर के निर्माण में सहायता देते हैं। You've got different jobs. हमारे अलग अलग काम है। If you are in Uttar Pradesh, you pray that God will lead you to do his work there and to build his church there. और अगर आप उत्तर प्रदेश में, तो आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको वहां सहायता करे और वहां आपकी अगुवाई करे कि काम करने के लिए उसका। I'll give you a verse God gave me 47 years ago when we started. मैं आपको एक वचन दूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया 47 वर्षों पहले जब हमने शुरू किया था, When there was no CFC church. जब कोई सीएफसी कलीसिया नहीं थी। One word the Lord gave. एक वचन जो प्रभु ने मुझे दिया, John 12:24. यूहन्ना 12 उसका 24। John and chapter 12. यूहन्ना उसका 12वां अध्याय। It's a great verse. ये एक अद्भुत वचन है। If a grain of wheat is by itself, it will remain alone. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। But if it dies, it will bring much fruit. परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। You take a grain of wheat आप एक गेहूं का दाना लीजिए and put it in a glass case in your sitting room. और आप जहां रहते हो वहां अगर उसको सजा कर आप रखो, तो After 50 years, it will be one grain of wheat. 50 वर्षों के बाद भी वो एक ही गेहूं का दाना रहेगा। But you take that one grain of wheat and bury it under the ground. पर उस एक गेहूं के दाने को लेकर अगर आप जमीन में गाड़ दो, तो Pour some water on it. उस पर थोड़ा पानी डालो, Within a few months, it will come up. It will become many grains of wheat. कुछ महीनों बाद वो ऊपर आएगा और कई गेहूं के दाने उत्पन्न होंगे। That's what the Lord said to me. यही परमेश्वर ने मुझसे कहा। Don't be like a Christian who is a decorative piece trying to show off to everybody how smart you are, how clever you are. एक ऐसा मसीह बनने की कोशिश ना करे जो केवल एक सजाया हुआ ये दिखाने की कोशिश करते हुए मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं कितना अच्छा हूं। Fall into the ground, disappear and die to yourself. भूमि में पड़कर गायब होकर अपने आप के प्रति मर जाइए। Don't desire anybody's honor or anybody's approval. किसी के भी आदर और किसी पे भी स्वीकृति को न खोजे। Just seek my approval, the Lord said. प्रभु ने कहा केवल मेरी स्वीकृति को खोजे। If you're tempted, die. अगर आप प्रलोभित होते हो तो मर जाइए। When people insult you, die to yourself. जब लोग आपको अपमानित करते हैं तो अपने आप के प्रति मर जाइए। Be like a dead man to this world. इस संसार के प्रति एक मरे हुए व्यक्ति के समान रहिए। Live only to Christ. केवल प्रभु मसीह के लिए जीवित। That's the meaning of dying here in this verse. इस वचन में मरने का यही मतलब है। The Lord's guarantee is there will be much fruit. प्रभु की गारंटी ये है कि आपके जीवन में अधिक फल होगा। 47 years ago, when I listened to that, I was alone. Just me and my wife. 47 वर्ष पहले जब मैंने उस वचन को सुना तो मैं अकेला था, केवल मैं और मेरी पत्नी। I wondered where this fruit will come. मैं सोचता था कि यह फल कहाँ से आएगा। But today I see thousands. पर आज मैं हजारों को देखता हूँ। Our message is going through the internet to 180 countries. हमारा संदेश इंटरनेट के द्वारा 180 देशों में जाता है। In 180 countries, they are listening to our message. 180 देशों में वे हमारा संदेश सुनते हैं। I didn't do that. मैंने ये नहीं किया, God did it. परमेश्वर ने ये किया। My calling is only to disappear, die to myself every day. मेरी बुलाहट केवल ये है कि मैं गायब हो जाऊं और अपने आप के प्रति रोज मर जाऊं। So, dear brother Sailesh Kumar, you die to yourself. God will bring fruit in your life. और इसलिए प्रिय भाई, आप अपने जीवन में अपने आप के प्रति मर जाइए और परमेश्वर आपके जीवन में फल लाएगा।
I am very happy to hear, dear brother Bharat, what the Lord is leading you to do. मैं बहुत खुश हूँ भाई ये सुनकर कि प्रभु आपको क्या करने के लिए अगुवाई दे रहा है। Be faithful in your daily life. आपके प्रतिदिन के जीवन में विश्वास योग्य रहे। If you're not married, I pray that God will give you a good wife. अगर आप विवाहित नहीं हो तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको एक अच्छी पत्नी दे। Or married, I pray you'll have a very happy married life. अगर आप विवाहित हो तो मैं प्रार्थना करता हूँ आपका एक खुशहाल विवाहित जीवन हो। The church is like a 3-story building. कलीसिया जो है एक 3 मंजिल की इमारत के जैसी है। The foundation is that God loves us perfectly. उसकी नींव ये है कि परमेश्वर सिद्ध तौर पर हमसे प्रेम करता है। If you don't believe that, you have no foundation in your life. अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते तो आपके जीवन में कोई नींव नहीं है। And then the ground floor is living with a good conscience every day. और फिर जो निचली पहली मंजिल है वो है प्रतिदिन एक अच्छे विवेक के साथ जीना। That is the first story. वो है पहली मंजिल। And then the second story is our family life. और दूसरी मंजिल है हमारा पारिवारिक जीवन। If you're not married, then your family life with your parents. अगर आप विवाहित नहीं हो तो अपने माता पिता के साथ आपका पारिवारिक जीवन। Married, then your family life with your wife and children. विवाहित हो तो आपके पत्नी और बच्चों के साथ आपका पारिवारिक जीवन। Third story is building fellowship with other believers in a church. और तीसरी मंजिल है कलीसिया में दूसरे विश्वासियों के साथ संगति बनाना। You can't build the third story without the first and second story. अगर आप तीसरी मंजिल बना ही नहीं सको, अगर पहले 2 मंजिल आपने नहीं बनाई हो तो। That is, first story is a first foundation, first of all, that you absolutely believe with all your heart God loves you perfectly. सबसे पहले तो नींव ये है कि आप पूर्ण तौर पर विश्वास करते हो हृदय में कि परमेश्वर सिद्धता से आपसे You प्रेम don't have करता है। any doubt about it. आपको उसके बारे में कोई शक नहीं है। God, you love me perfectly. Everything you do is for my good. I thank you. परमेश्वर तो सिद्धता से मुझसे प्रेम करता है, जो कुछ तो मेरे लिए करता है वो मेरे भलाई के लिए है। And then the first story is every day living with a good conscience. और फिर पहली मंजिल प्रतिदिन एक अच्छे विवेक के साथ जीना। Every sin confessed immediately, forsaken immediately. हर पाप तुरंत अंगीकार करके उसके छोड़ दिया। And the second story, living at home in a godly way. दूसरी मंजिल एक घर पर ईश्वरीयता से जीना। Whether your home is your parents or your wife and children. शायद आपका घर आपके माता पिता हो या आपके पत्नी और बच्चे हो। Never mind the others, but you live a godly life in that home. दूसरों को छोड़ दीजिए पर आप एक ईश्वरीय जीवन जीजिए। And then on top of that, praying that God will bring to you others who want to be built together as a body. और इन सबसे ऊपर प्रार्थना करना कि प्रभु दूसरों को आपके साथ जोड़े कि आप एक मसीह की देह के समान निर्माण हो जाए। What is the beginning of a church? एक कलीसिया की शुरुआत क्या है? What Jesus said in Matthew 18:20. जो यीशु ने मत्ती 18:20 में कहा, Where 2 or 3 are जहाँ gathered by the Holy Spirit in my name, He is in the midst. That's the church. जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से पवित्र द्वारा इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में हूं, वो कलीसिया है। You don't have to be 200 or 300. आपको 200 या 300 होने की आवश्यकता नहीं। You don't even have to be 20 or 30. आपको 20 या 30 की भी जरूरत नहीं। 2 or 3. 2 या 3, Not 1. एक नहीं। 1 means you can walk alone with the Lord. एक मतलब आप प्रभु के साथ अकेले तो चल लोगे। To build a church, there must be minimum 2 people who have become 1. कलीसिया का निर्माण करने के लिए आपको 2 लोगों की आवश्यकता है जो एक हो चुके हैं। It's like in an earthly family, you need 2 husband and wife to have children. जैसे एक पारिवारिक एक पृथ्वी के परिवार में आपको 2 लोगों की जरूरत है, पति पत्नी की, The बच्चों church की। also, to be a church, there must be 2 people, then Jesus is in the midst. कलीसिया के लिए भी आपको 2 लोगों की जरूरत है जहां यीशु उनके बीच है। And if 2 people can become 1 with Christ in the midst, then it'll become 3, 4, like that. That is how we grew as a church. और अगर 2 लोग एक हो जाए, मसीह उनके बीच में हो, फिर 2 के 3, 3 के 4, ऐसे हमारी बढ़ोतरी हुई है कलीसिया के नाते। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। And I would say this, Steve, growth is something that will take place till the end of your life. और मैं ये कहूंगा कि बढ़ोतरी जो है, उन्नति जो है आपके जीवन के अंत तक होती रहेगी। I need to grow because I'm not yet 100% like Christ. मुझे बढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि मैं 100% मसीह जैसा नहीं हूँ। There are areas in my life I don't know. When God shows me, I can grow there. मेरे जीवन के ऐसे क्षेत्र है जिसको मैं नहीं जानता, जब प्रभु मुझे दिखाएगा फिर मैं बढ़ूंगा। It's like in a school. बिल्कुल एक स्कूल के जैसे। When you're in 2nd standard, you don't know algebra and trigonometry and all that. जब आप दूसरी कक्षा में होते हो, आप भौतिकी, अलजेब्रा नहीं जानते, आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते। So it comes slowly, slowly, you learn more and more. और वो धीरे धीरे होता है, आप ज्यादा ज्यादा सीखते जाते हो। But even after you come to 10th standard, there's still more you have to learn in college.
पर 10वीं कक्षा के बाद भी ज्यादा होता है जो आपको कॉलेज में सीखना है। Christian life is a constant growth. और मसीह जीवन एक निरंतर उन्नति है। And don't get into arguments or controversy with other believers who don't agree with what you're seeking after. और दूसरे विश्वासियों के साथ कोई लड़ाई या विवाद न करे जो उसके पीछे नहीं खोज रहे जो आप खोज रहे हो। And everything that you hear from me, please go to the Word of God and get it from Christ directly also. और जो कुछ आप मुझसे भी सुनते हो बाइबल के पास जाकर उसको सीधे तौर पर मसीह से भी प्राप्त कीजिए। I'm only a pointer saying, there's what Jesus is saying, read that. मैं केवल एक पॉइंटर हूं जो ये दिखाता है कि देखिए वहां यीशु क्या कह रहा है, उसे पढ़े। If you only listen to me, you will be blessed. I know that. आप केवल अगर मुझे सुने तो मैं जानता हूं कि आप आशीषित होंगे। But if in addition you go beyond me to Christ, you'll be more blessed. पर अगर उससे भी बढ़कर मुझसे आगे बढ़कर आप मसीह के पास जाए तो आप बहुत आशीषित होंगे। That is why I emphasize you must pray to be filled with the Holy Spirit. इसी वजह से मैं जोर देता हूं कि आपको प्रार्थना करनी है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। Don't become a Pentecostal. एक पेंटिकॉस्टल मत बन जाइए। Be a true Christian, like the Acts of the Apostles. एक सच्चे मसीह बने प्रेरितों के काम की तरह। I know the brethren don't emphasize this. मैं जानता हूं कि ब्रदरन इस पर जोर नहीं देते। Don't get into an arguments with them. उन लोगों से विवाद न करें। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताऊंगा। Your life, a Christ-like life, is the greatest argument that you can preach. एक मसीह जैसा जीवन ये सबसे बड़ा एक विवाद है जिसका आप प्रचार कर सको। Not words that you speak from your intelligence. आपके शब्द नहीं जो आपके बुद्धिमानी से आप कहो। Many people argue with me about doctrines. कई लोग मुझसे वाद करते हैं डॉक्ट्रिन पर, सिद्धांतों पर। I say, I know what the Lord has done in my life. मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है। I know what the Lord has done in my relationship with my wife. मैं जानता हूं मेरे पत्नी के साथ जो संबंध है उसमें प्रभु ने क्या किया है। I have 4 sons. They are all disciples of Jesus. मेरे 4 बेटे हैं, वे सब यीशु के शिष्य हैं। And they are building churches. और वे कलीसियाओं का निर्माण कर रहे हैं। I've seen the result in my life. और मैंने अपने जीवन में प्रतिफल देखा है। People can argue with me about doctrine, but I say this is the result in my life. लोग मुझसे सिद्धांत के ऊपर बहस कर सकते हैं पर मैं कहूंगा मेरे जीवन में ये परिणाम है। There are some people who say that we are preaching a wrong doctrine. ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम गलत शिक्षा सिखाते हैं। What I tell them is, मैं उनसे ये कहता हूँ, you say we are sowing a bad seed, but we're getting a good crop. आप कहते हो कि हम एक बुरा बीज, गलत बीज खेत में डाल रहे हैं पर हमारी फसल तो अच्छी आ रही है। You people say your seed is good, but your crop is bad. आप लोग कहते हो आपका बीज सही है पर आपकी फसल बुरी है। Look at your family life. आपके परिवार जीवन को देखें। Look at the way your children are growing up. आपके बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं उसको देखें। That is the crop. वो फसल है। By the fruit you shall know them, not by boasting about the seed we are sowing. यीशु ने कहा उनके फल से तुम उन्हें पहचानोगे, ये नहीं कि हम कौन सा बीज बो रहे हैं। Don't get into argument with people about doctrines. और इसलिए लोगों से सिद्धांत के ऊपर बहस न करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Yes, Brother Praveen, thank you very much for your testimony. It's always an encouragement to us to hear that somebody is blessed. आपके गवाही के लिए आपका धन्यवाद। ये हमारे लिए हमेशा एक प्रोत्साहन होता है कि कोई आशीष पाई है किसी ने। Be faithful in the little things in your life, आपके जीवन की छोटी बातों में विश्वास योग्य बने रहे and God will bring fruit from your labors. और परमेश्वर आपके परिश्रमों से फल लाएगा। Okay, you pray that God will fill you with the Holy Spirit and God will guide you. So many people think that some man of God prays for them, everything will be solved. कई लोग सोचते हैं कि कोई परमेश्वर का जन उनके लिए प्रार्थना करेगा और उनके जीवन की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। That's not true. वो सच नहीं है। I'm sure Jesus prayed for Judas Iscariot, but he was still lost. मैं निश्चित हूँ यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के लिए प्रार्थना की पर उसके बावजूद वो खो गया। If everything depended on Jesus praying, the whole world would be converted. अगर सब कुछ निर्भर होता यीशु की प्रार्थना पर तो पूरा संसार का उद्धार हो जाता। So it's good that people pray for us, but we must be faithful to take up the cross every day. और इसलिए ये अच्छा है कि लोग हमारे लिए प्रार्थना करें पर हमें विश्वास योग्य होना है कि हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं And seek to become more and more humble every day. और हम ये कोशिश करें कि हम प्रतिदिन अधिक और अधिक नम्र बने, Because God gives His grace to the humble. क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह नम्र लोगों को देता है। See, this brother once says he's got a lot of unforgiving spirit towards many people.
और ये भाई कहते हैं कि कई लोगों के प्रति उनके हृदय में कड़वाहट है, क्षमा न करने की भावना है। That is the problem with many people. This brother is honest about it. That's all. ये कई लोगों के साथ यही समस्या है, फर्क बस इतना है कि ये भाई उसके विषय में ईमानदार है। Many of you who are listening to me here also may have it, but you don't realize it. आप में से कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपके हृदय में भी शायद होगा, पर आप उसको महसूस नहीं But करते। unforgiveness is like a big block in the pipe that prevents the water from flowing. पर क्षमा न करना ये एक पाइप में बड़े ब्लॉक समान है जिसकी वजह से पानी नहीं बहता। And no matter how much you pump the water, it will not come. There's a block in the pipe. और फिर आप कितना भी उसमें पानी पंप क्यों ना करें, पानी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एक बाधा है। So we can pray and pray and pray. It's like pumping. The water doesn't come. और हम प्रार्थना करते पर पानी ही नहीं आता। It's like pumping. The water is not coming. वो पानी को पंप करने जैसा है, पर पानी नहीं बह रहा। So how to get rid of this block? फिर इस बाधा को कैसे हटाए? Jesus not only said, believe in me. यीशु ने केवल ये नहीं कहा मुझ पर विश्वास करो, There's something he said much more than that. उससे भी अधिक उसने कुछ कहा। Follow me. उसने कहा मेरे पीछे हो लो। Many churches say, believe in Jesus Christ. कई कलीसियाएं कहते हैं यीशु मसीह में विश्वास करो। In CFC, we say, believe and then follow Jesus Christ. सीएफसी में हम कहते हैं विश्वास करो और फिर यीशु का अनुसरण भी करो। Do what he did. उसने जो किया वो करो। For example, he said, man shall not live by bread alone, but by every word of God. उदाहरण के तौर पर यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जिएगा जो परमेश्वर के मुख से निकलती है। He was born like an ordinary baby, but he knew the Bible by the age of 12. वो एक आम बच्चे की तरह उसका जन्म हुआ, पर 12 की उम्र में वो बाइबल को जानता था। And they didn't have any printed Bible those days. और उन दिनों तो कोई प्रिंटेड बाइबल भी नहीं थी। He had to go to the synagogue and ask the Jewish rabbi to read the Bible to him. उसे आराधनालय में जाना पड़ता था और वो जो यहूदी रब्बी होते थे उनसे पूछना पड़ता था कि वो उसके लिए थोड़ा बाइबल पढ़ दे। From the age of 5 to the age of 12, he must have gone every day to read the Bible, get the Bible read. That's how he knew the Bible. और 5 से लेकर 12 की उम्र में प्रतिदिन वो जाता होगा बाइबल पढ़ने के लिए, वैसे ही उसने बाइबल सीखी। When I saw that, जब मैंने वो देखा, I said, Lord, I want to follow you. I want to मैंने read the कहा, Bible every day and get to know it. मैंने कहा प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, प्रतिदिन बाइबल पढ़कर मैं तेरे उसे जानना चाहता हूँ। And forgiving people. और लोगों को क्षमा करना। What did Jesus do when he was hanging on the cross? यीशु ने क्या किया जब वो उस क्रूस पर टंगा हुआ था? My dear brother, I want to say to you, whatever sin anybody has done against you, मेरे प्रिय भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो कुछ पाप लोगों ने आपके खिलाफ किया होगा, वो even if 100,000 people have done evil to you, अगर 1 लाख लोगों ने भी आपके खिलाफ बुराई की है, तो nothing you have faced is as bad a sin as the crucifixion of Jesus Christ. आपने जो कुछ भी सामना किया है वो इतना गंभीर पाप नहीं है जैसे यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना था। The worst sin that anybody committed on this earth from the beginning of Adam is the crucifixion of Jesus Christ. सबसे बदतर पाप जो किसी ने आज तक किया होगा आदम की सृष्टि से लेकर, वो है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना। Even if people do 100 crore sins against me, it will not equal that one crucifixion of Jesus Christ. अगर लोग मेरे खिलाफ 100 करोड़ भी पाप कर दे तो यीशु मसीह को एक बार क्रूस चढ़ाने को वो बराबरी उसकी नहीं कर सकता। Because they were crucifying the Son of God. क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा रहे थे। And when the worst sin was committed, और जब सबसे बदतर पाप किया जा रहा था, immediately Jesus said, Father, forgive them. तुरंत यीशु ने कहा पिता उन्हें क्षमा कर। They don't know what they are doing. वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। I ask myself, don't people know what they are doing when they kill a man? मैं अपने आप से पूछता हूँ क्या लोग जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं जब वे किसी की हत्या कर रहे हैं? Yeah, they don't know how serious a sin it is to treat a man like that. वे नहीं जानते कि किसी मनुष्य से ऐसा व्यवहार करना क्या ही गंभीर पाप है। That's how it becomes easy to forgive others. इस ऐसे ही आसान हो जाता है लोगों को क्षमा करना। Take all the sins everybody has committed against you. सारे पाप ले लीजिए जो लोगों ने आपके खिलाफ किए हैं। That's like a drop in the ocean compared to the crucifixion of Jesus Christ. वे समुद्र में एक बूंद मात्र के समान है अगर हम उसकी तुलना मसीह के क्रूस And पर if he चढ़ाए can जाने से forgive करें। that, if he can forgive that, I can forgive this one drop. अगर वो उसको क्षमा कर सकता है तो मैं एक बूंद को तो क्षमा कर ही सकता हूँ। Look to Jesus, follow him, यीशु को देखिए और उसके पीछे हो ले। and see how much you have sinned against Christ yourself. और देखिए कि आपने खुद मसीह के खिलाफ कितने महान पाप किए हैं। And he has forgiven you all that. और मसीह ने आपको वो सब क्षमा किया है। And he taught us to pray, Father, forgive us just like we forgive others.
और उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि पिता हमें क्षमा कर, बिल्कुल वैसे जैसे हम दूसरों की क्षमा करते हैं। Look at the way God forgave you and forgive other people like that. देखिए परमेश्वर ने आपको कैसे क्षमा किया और वैसे ही दूसरों को क्षमा करें। I can stand today before God and say, I have forgiven everybody in the world. मैं परमेश्वर के सामने आज खड़ा होकर कह सकता हूँ कि इस संसार में मैंने हर एक को क्षमा किया है। Some of you may think that many people have attacked you in many ways. आपको लगता होगा कि आप में से कईयों को लोगों ने कई तरीकों से हमला किया है, आपको चोट पहुंचाई है। I have been in full-time Christian work for the last 56 years. मैं पूर्णकालीन मसीही सेवा में पिछले 56 वर्षों से हूँ। Wholeheartedly trying to serve the Lord. पूर्ण हृदय से प्रभु की सेवा करने की कोशिश की है। So I am a bigger target of Satan than many other believers. और कई अन्य विश्वासियों से ज्यादा मैं शैतान के लिए एक बड़ा हमला का एक शिकार हूँ। And particularly because I am preaching holiness. विशेषकर इसलिए क्योंकि मैं पवित्रता का प्रचार करता हूँ। You may not realize in how many ways Satan tries to attack me. आप ये शायद नहीं समझोगे कि कितनी तरीकों से शैतान मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है। Only I know. केवल मैं जानता हूँ। Maybe my wife will know a little bit. मेरी पत्नी थोड़ा बहुत जानती है। But most people, even in my church, don't know. मेरे कलीसिया में अभी अधिकतर लोग नहीं जानते। Attacks me through people. और लोगों के द्वारा मुझ पर हमला करता है। 56 years he's tried to attack me in so many ways through so many people. 56 वर्षों से अलग अलग लोगों के द्वारा उसने कई बार कोशिश की है मुझ पर हमला करने की। Some religious people took me to court for 10 years. कुछ धार्मिक लोग मुझे कोर्ट ले गए 10 वर्षों तक। All the way to the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट तक वे ले गए। Made us spend lakhs of rupees हमें लाखों रुपए खर्च करने पड़े on lawyers. वकीलों पर। I have forgiven every one of them. मैंने उनमें से हर एक को क्षमा किया है। I love them. मैं उनसे प्रेम करता हूँ। I pray that God will bless them. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ने आशीष देगा। I don't have any evil attitude towards a single human being in the world. एक भी मनुष्य के प्रति कोई बुरा रवैया मेरे हृदय में नहीं है। I say, Father, forgive them. They don't know what they are doing. मैं कहता हूँ पिता उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। They don't know that they are attacking a servant of God. वे नहीं जानते कि परमेश्वर के एक सेवक पर वो हमला कर रहे हैं। Forgive them. उन्हें क्षमा कर। I don't want them to be judged in the final day. मैं नहीं चाहता कि अंतिम दिन पर उनका न्याय हो। So, my dear brother, don't think that you people have done worse things to you. इसलिए मेरे प्रिय भाई के ये ना सोचे कि लोगों ने आपके प्रति बुरे बातें किए हैं। Those who serve the Lord full time are the ones who are attacked the most by the devil. जो लोग परमेश्वर को पूर्णकालीन सेवा करते हैं वे सबसे ज्यादा शैतान उन पर हमला करता है। Especially those who preach God's highest standards. विशेषकर वे जो परमेश्वर के सबसे ऊंचे सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। They may not tell you all the ways in which they are attacked. वे शायद आपको बताएंगे नहीं किन किन तरीकों से उन पर हमला हुआ है। I don't tell people. Why should I? don't want any sympathy from people. मैं लोगों को क्यों बताऊं? मैं लोगों से कोई तरस नहीं चाहता। God knows and God gives me strength to overcome it. परमेश्वर जानता है और परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उस पर जय पाने के लिए। I say this to you, my dear brother. There are other people who have suffered 100 times more than you, and they are forgiven people. मैं आपको बताता हूँ प्रिय भाई इसलिए क्योंकि आप जानो कि आपसे दूसरे लोग हैं जिन्होंने आपसे ज्यादा पीड़ा सही है पर उन्होंने लोगों को क्षमा किया है। So forgive them. Your life will be happy. इसलिए उन लोगों को क्षमा कीजिए, आपका जीवन खुश होगा। If you don't forgive, it's like keeping a little cancer in your body and nurturing it instead of killing it. अगर आप लोगों को क्षमा न करें तो ये ऐसा है कि आप आपके हृदय में थोड़ा कैंसर रखते हो, उसको संजोए रखते हो, आखिरी में वो आपको मार देगा। Those people have already done something evil to you. उन लोगों ने पहले ही आपके खिलाफ कुछ किया है। That itself is bad. वो पहले से ही बुरा है। But now you are doing evil to yourself by not forgiving them. पर अब उनको क्षमा न करके आप अपने आप के प्रति कोई बुराई कर रहे हो। If they hear of it, they'll be very happy. This chap is now destroying himself even more than we hurt him. अगर वे लोग उसके बारे में सुने तो वे और भी खुश होंगे कि ये व्यक्ति तो अपने आप को और भी तबाह कर रहा है। Don't let the devil make a fool of you. शैतान को इस प्रकार आपको मूर्ख न बनाने दे Somebody hurt you and then you begin to hurt yourself also. कि कोई आपको चोट पहुंचाता है फिर आप अपने आप को भी चोट पहुंचाने लगते हो। Like somebody stabbing you with a knife and you take a knife and you stab yourself also. सोचकर देखिए कोई आपको आकर चाकू से मारे फिर आप खुद चाकू उठाकर खुद को मारने लगते हो। That is foolish. वो मूर्खता है। To not forgive is like taking a knife and hurting yourself. You're not hurting them, you're hurting yourself. क्षमा न करना ये एक चाकू उठाकर खुद को तकलीफ देने जैसा है। आप उनको नहीं बल्कि अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। Be wise. आप बुद्धिमान बने।
Don't let the devil make a fool of you. शैतान को आपको मूर्ख ना बनाने And दे ask Jesus to help you. और यीशु से मांगे कि वो आपकी सहायता करे। He will help you. वो आपकी सहायता जरूर करेगा। Look at his example and follow him. उसके उदाहरण को देखकर उसके पीछे चले। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। So first of all, we thank God that God alone is the final judge of everybody. और सबसे पहले तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इकलौता अंत में लोगों का न्याय करने वाला है। There is a difference between discerning the condition of people and judging them. लोगों की अवस्था परखना और उनका न्याय करना, इसमें अंतर है। See, if I go to a shop and I feel this shopkeeper is deceiving people about the items he is selling, अगर मैं एक दुकान में जाऊं और मुझे लगे कि ये दुकानदार लोगों को धोखा दे रहा है वो जो बेच रहा है उसमें, I must discern it, but I don't have to report that man to the police. मुझे परखना है, पर मुझे जाकर पुलिस को बताने की जरूरत नहीं। No, I am not the judge of all these people. नहीं, इन सारे लोगों का मैं न्यायाधीश नहीं हूँ। I won't go to that shop to buy those things because he is cheating people. मैं उस दुकान में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो लोगों को धोखा देता है। But my job is not to go around the town and find all the cheats and report them all to the police. पर मेरा ये काम नहीं कि मैं शहर में घूमूं और सारे जो धोखेबाज हैं उनको पकड़कर उनके बारे में पुलिस को बताऊं। No, the same way I don't go around the churches to find out who all are wrong and condemn them. और वैसे ही मैं सारे कलीसियाओं में नहीं घूमता ये ढूंढने के लिए कोई कौन कौन लोग गलत है और फिर उन पर दोष लगाओ। The people who listen to me are my family. Them I must warn. Be careful about all these people. जो लोग मुझे सुनते हैं वे मेरा परिवार है, उनको मुझे सावधान करना है कि इन लोगों के बारे में सतर्क रहे। See, if there are some crooked people going around cheating people in my hometown, अगर मैं जहां रहता हूं वहां लोग बुरे दुष्ट लोग आकर लोगों को धोखा दे रहे हैं तो I have to warn my family members. I don't have to go around to all the houses and warn everybody. मुझे जाकर अपने परिवार के जनों को सावधान करना है, मुझे जाकर सबको सतर्क करने की जरूरत नहीं। So, those who listen to me, I warn them. और जो मुझे सुनते हैं मैं उनको सतर्क करता हूँ। Compare everything with the Bible. हर एक बात की तुलना बाइबल से करके देखें। Compare everything with what Jesus said. जो यीशु ने कहा उससे तुलना करके देखें। If they don't preach everything Jesus said, something is wrong. और जो कुछ यीशु ने कहा उस पर अगर वे प्रचार नहीं कर रहे तो कुछ गलत है। Everything. Jesus said, teach them all that I taught you. सब कुछ यीशु ने कहा, जो कुछ मैंने सिखाया उसकी आज्ञा मानना सिखाओ। Yeah. No subject must be left out. कोई भी विषय रहना नहीं चाहिए। What is the difference between preaching and teaching? प्रचार करना और सिखाना, इसमें क्या अंतर है? Yeah. Teaching is a more detailed study of a subject. शिक्षा देना, सिखाना, ये किसी विषय के बारे में बहुत ही गहराई में बताना है। Preaching, we can all preach according to the level of our experience. प्रचार मतलब हम में से हर एक प्रचार कर सकता है अपने अनुभव के स्तर के अनुसार। The person who is born again. जो व्यक्ति जिसका नया जन्म होता है। I was born again in 1959. 1959 में मेरा नया जन्म हुआ था। Immediately, I started giving out tracts and telling other people you must be born again. तुरंत मैं ट्रैक्ट्स देने लगा, लोगों को बताने लगा कि आपका नया जन्म होना चाहिए। I could not teach them from the Bible. मैं बाइबल से उन्हें नहीं सिखा सकता था। I was not a teacher. क्योंकि मैं शिक्षक नहीं था। But I could preach. पर मैं प्रचार तो कर सकता था। Preach up to my level. मेरे स्तर तक मैं प्रचार कर सकता था। That time, all I knew was Jesus died for me. He forgave my sins. उस समय मैं केवल यही जानता था, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, उसने मेरे पापों को क्षमा किया है। But then, as I grew and the Lord gave me the gift of teaching, and that is a gift, then I can teach others. पर फिर जब मैं बढ़ते गया और जब परमेश्वर ने मुझे सिखाने का वरदान दिया, फिर मैं लोगों को सिखाने लगा। God has not given the gift of teaching to everybody. परमेश्वर ने सिखाने का वरदान हर एक को नहीं दिया है। So that is a gift we read in Ephesians 4 verse 11. He gives to some people. वो एक वरदान है जो इफिसियों 4:11 में हम पढ़ते हैं, वो कुछ लोगों को देता है। So there are people who, like you read 1 John 1:6, they say they have fellowship with him, but they walk in darkness. और इसलिए कुछ लोग हैं, जैसे आपने पहले यूहन्ना 1:6 का जिक्र किया कि वो कहते हैं वे ज्योति में चलते हैं पर वे अंधकार में चलते हैं। So what should we do? फिर हमें क्या करना चाहिए? Those in our spiritual family, we must warn about them. हमारे जो आत्मिक परिवार में है, हमें उनको सतर्क करना है, उनके विषय में चेतावनी देनी है। I'm not here to go to them and judge them saying you're going to hell or you're disobedient. No. पर मेरा ये काम नहीं कि मैं उनके पास जाकर उनका न्याय करूं, उन्हें कहूं कि तुम आज्ञा नहीं मानते, तुम नरक जाओगे। God may call some special prophets to go and tell them. I'm not one of them.
पर परमेश्वर कुछ विशेष भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा कर सकता है उनको जाकर बताने के लिए, पर मैं उनमें से एक नहीं हूँ। My calling is God gives me a family that is gradually growing around the world, and I have to keep warning them, be careful, be careful. मेरी बुलाहट है कि परमेश्वर मुझे एक परिवार देता है इस संसार में, और मुझे उनको सावधान करते रहना है कि सतर्क रहे, सतर्क रहे। You must also see who are the ones who have some confidence in you. Please guide them and correct them. और आपको देखना है कि ऐसे कौन लोग हैं जो आप में हिम्मत रखते हैं, हियाव रखते हैं, आपको उनको प्रोत्साहन देना है, उनको सुधारना है केवल। Watch over your own life first. सबसे पहले अपने जीवन पर ध्यान दे, Walk with the Lord. प्रभु के साथ चले, Overcome all known sin. सारे पाप को जिसको आप जानते हो, सचेत पाप पर जय पाए। From the little that you testified, I already see you have understood a lot. जो आपने थोड़ी सी गवाही दी उससे मैं देख पाता हूँ कि आप बहुत कुछ समझ गए हो। That's wonderful that God has given you so much light already. ये अद्भुत है कि परमेश्वर ने अभी आपको काफी चीजों पर ज्योति दी है। Don't be against any born again Christian, whether he's Brethren, Pentecostal, Baptist, Methodist, anything. किसी भी नए जन पाए हुए विश्वासी के खिलाफ न हो, चाहे वो बैप्टिस्ट हो, मेथोडिस्ट हो, पेंटिकॉस्टल हो, ब्रदरन हो, कोई भी हो। I'm not against them. I love them all. मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं उन सबसे प्रेम करता हूं, I disagree with you पर मैं उनसे राजी नहीं होता, because the Bible says something else. क्योंकि बाइबल कुछ और सिखाती है। Don't argue with. पर मैं उनसे जाकर झगड़ा नहीं करता। Whenever people come to argue with me, I say, no, I don't like argument. जब कभी लोग मुझसे बहस करने आते हैं तो मैं जाकर कहता हूं कि नहीं, मुझे बहस करना नहीं पसंद। If you want me to show you from scripture, I'll show you. अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बाइबल से कुछ दिखाऊं तो मैं आपको दिखा दूंगा। If you want to argue with me and prove that I'm wrong, I'm not going to argue. पर अगर आप बहस करना चाहते हो, ये साबित करना चाहते हो कि मैं गलत हूं, तो मैं बहस नहीं करूंगा। Careful that you don't get into argument with people who are trying to convince you about something. और इसलिए सावधान रहे कि आप ऐसे लोगों से बहस नहीं करते जो आपको किसी बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। We must not be people of fighting type. हमें लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं होना है। We must be people of peace. हमें शांति के लोग बनना है। We instruct those who want instruction. हम उन लोगों को शिक्षा देते हैं जो शिक्षा चाहते हैं। I'll give you one example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। One man came to my house and said, I believe that we must not take medicines, that we must always trust Jesus to heal us. एक व्यक्ति मेरे घर आया, उसने मुझे कहा, मेरा विश्वास है कि हमें कभी दवाई नहीं लेनी चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए कि यीशु हमें चंगा करेगा। He belonged to one Pentecostal denomination that teaches that. वो किसी पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन का था जिसमें ये सिखाया जाता है। So I said, listen, I'm not going to argue about that. I don't agree with you. मैंने कहा, सुनो, मैं इससे आप पर बहस नहीं करूंगा, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। Because I'll show you verses in the Bible where Paul was sick and he was not healed. क्योंकि मैं आपको बाइबल के ऐसे वचन दिखाऊंगा जहां पौलुस खुद बीमार था, वो चंगा नहीं हुआ। And now Timothy, he had a stomach ache and he was not healed, and Paul told him to take a medicine. और कैसे तिमुथियुस को पेट की बीमारी थी, वो चंगा नहीं हुआ था और पौलुस ने उसे कहा कि वो दवाई ले ले। But I'm not going to argue with you. पर मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। But he kept on arguing. पर वो बहस करते ही जा रहा था। I said, let's stop talking about this subject. और मैंने कहा, आइए इस विषय पर बात करना हम रोक दें। Let's talk about cricket, India versus Pakistan. Who should win? आइए हम क्रिकेट की बात करें, भारत बनाम पाकिस्तान, कौन जीतना चाहिए? There you and I are agreed, right? Let's talk about that. क्योंकि वहां आप और मैं सहमत है ना? आइए हम उसी पर बात करें। Because the Bible says, pursue peace with all men. I was trying to pursue peace with him. क्योंकि बाइबल बताती है सारे लोगों से अनुग्रह और मेल मिलाप को खोजो, मैं वही कर रहा था। Be a witness, but don't get into arguments. और एक गवाह तो बने, पर बहस ना करे। And pray that God will give you fellowship wherever you go. और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको संगति दे आप जहां कहीं जाते हो। Are you in the army? आप मिलिट्री में है क्या? मैं सीआरपीएफ में हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। Yeah, central. Okay, that is why you are transferred. That is Yes. I was in the military. It's a great place to be a witness for Christ. मैं खुद मिलिट्री में था, वो एक अद्भुत जगह है जहां पर मसीह के लिए गवाह बन सकते हो। You can be very strong. Being a witness for Christ in the military made me very strong. मिलिट्री में परमेश्वर के लिए, सेना में परमेश्वर के लिए गवाह होना, उसने मुझे बहुत मजबूत बलवंत बनाया। May God fill you with the Holy Spirit and make you His witness. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर दे और उसका गवाह बनाए। I'll give you one verse. मैं आपको एक वचन दूंगा, Remember it. उसे याद रखें। Acts 1 verse 8. प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन। You will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा and you will be my witness. और तुम मेरे गवाह बनोगे। In this place, that place, the other place, wherever you go. इस जगह उस जगह उस जगह जहां कहीं आप जाओ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।